So next we are starting with company accounts in which first topic is issue of shares. So first let us say recall when a company is formed. So as you have seen in a beginners studies paper, so there are different types of organizations. So through which business is carried on. So what are these organizations? Like number one is sole proprietorship, and the second is partnership, and the third common form of a business organization is a company. So in this case, what are differences? In case of sole proprietor, so there is one person, so who is called owner. In partnership, there are two or more persons, so who are called owners, and they are also called partners. So it means when we want a business on a large scale, so then we start a business through partnership firm or company. Because in case of sole proprietor, there is one owner whose funds are limited. So it means when a very large business we have to start, then a company is suitable. Why company is suitable? In this case, so there are seven or more persons, so which are required to form a company. Normally, companies are of two types. So one is called public company. So it has seven or more members, seven or more persons. And in case of a company, these persons are called owners and they are called members of a company, or they are also called shareholders. For example, in sole proprietor, so owner is called proprietor, and in partnership, owners are called partners, and in a company, they are called shareholders or members. So in case of company, public company, there should be minimum seven members, and second type of company is a private company, and here it should be minimum two or more members. So this we are doing now in case of a company. When a company is formed to carry on a large business, and we also know that to carry on business we require capital. So question is how capital is raised by company. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी को आप सीओ से भी डिनोट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर में जो ओनर है वो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करके है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लेकर आते हैं। बट इन केस ऑफ ए कंपनी जो कैपिटल है दिस इज रेज दिस इज गिवन बाय शेयर होल्डर्स। इट मीन्स हाउ कैपिटल इज रेज, दिस इज कॉल्ड कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स हैं और जिनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। But in case of a company there is a slightly different procedure to raise this capital। उसके लिए क्या करते हैं, जैसे टोटल कैपिटल चाहिए कंपनी को, सपोज टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड इज रुपीज 1 करोड़ 100 lakhs। तो इसको हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। और ये जो यूनिट्स की वैल्यू होती है स्मॉल यूनिट्स जनरली हम लेते हैं ऑफ रुपीज 10 ईच। तो एक यूनिट जो है वो आपका है 10 रुपए का। तो इस यूनिट को, जो स्मॉल यूनिट है, इसको हम कहते हैं शेयर ऑफ ए कंपनी। तो ये कंपनी का शेयर है ऑफ अ कंपनी। यदि आपको 1 करोड़ का कैपिटल रेज करना है तो इसका मतलब है इसके बन जाएंगे 10 लाख शेयर, 10 लाख शेयर से।
तो उनका नाम रख दिया हमने, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब इसमें जैसे हमने लिखा है कि 7 मिनिमम मेंबर चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कंपनी के केस में क्या होता है, पब्लिक कंपनी में हम ओपनली पब्लिक को ये शेयर इशू करके हैं कि जो भी इसका ओनर बनना चाहता है तो वो इस शेयर को परचेज कर सकता है। तो इसमें इस तरीके से फिर कंपनी का कैपिटल रेज हो जाता है। तो देखते हैं क्या प्रोसीजर है इस कैपिटल को रेज करने का। तो फर्स्ट लेटर सी प्रोसीजर टू रेज कैपिटल बाय कंपनी, कि जो कंपनी है वो किस तरीके से अपना कैपिटल अब रेज करती है। कंपनी एक ना डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। जैसे आपने देखा होगा जब आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक प्रोस्पेक्टस आप परचेज करते हैं, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है स्कूल या कॉलेज की। वैसे प्रोस्पेक्टस जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है विच प्रोवाइड्स, जो आपको प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन तो अबाउट कंपनी। तो ये जो कंपनी स्टार्ट हो रही है तो उसका किस टाइप का बिजनेस है, कितना कैपिटल उसको रेज करना है, कौन इसके मेंबर्स हैं, पर्सन्स हैं जो इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो जो मेंबर्स होते हैं, जो पर्सन जो स्टार्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड जो प्रमोटर्स, तो उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इसमें। प्रमोटर्स होते हैं हु स्टार्ट कंपनी, जिनको आइडिया आता है कि कंपनी स्टार्ट करनी है। तो इस प्रोस्पेक्टस को आप परचेज कीजिए। अब उसके थ्रू फिर आप अपने शेयर परचेज कर सकते हैं उस कंपनी के। इट मीन्स थ्रू प्रोस्पेक्टस कंपनी विल इशू। अब किस तरीके से आप शेयर परचेज करेंगे, उसके लिए कंपनी जो है विल इशू, वो इशू करती है शेयर्स टू पब्लिक। पब्लिक को हम इशू करते हैं ओपनली, ठीक है जी। और किस तरीके से इशू होंगे, बाय एडवर्टाइजमेंट। उसके लिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट देती है इन न्यूज पेपर्स एक्सेट्रा। तो फिर उसके बेस पर अब जो भी पर्सन इस कंपनी के शेयर को परचेज करना चाहते हैं वो फिर अप्लाई करते हैं। इट मीन्स पर्सन विल अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ अ कंपनी। फिर उसके लिए वो मनी पे कर देगा जो भी शेयर का प्राइस है। इट मीन अप्लाई का मतलब है ये जो पर्सन है, पर्सन विल मेक पेमेंट। फिर इस तरीके से फिर कंपनी उसको शेयर जो है वो दे देती है एंड दैट पर्सन बिकम्स ओनर ऑफ अ कंपनी, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। तो ये है बेसिक प्रोसीजर। अब देखते हैं डिटेल में। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो कंपनी बन रही है, कंपनी ने जब शेयर इशू किए हैं, उससे कैपिटल मिल रहा है, अब उसको कैसे रिकॉर्ड करेगी अपनी बुक्स में कंपनी, वो देखते हैं हम। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर। इट मीन्स हम डिस्कस करेंगे अब बुक्स ऑफ कंपनी बना रहे हैं कैसे हम बुक्स ऑफ कंपनी में। तो हाउ टू रिकॉर्ड, आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन से, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी और इशू ऑफ शेयर्स, शेयर के इशू से रिलेटेड। राइट। तो सबसे पहले कंपनी आपको बताएगी बता नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड टू पब्लिक, जो आप इशू कर रहे हैं पब्लिक को। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 लाख शेयर आपने इशू करनी है ऑफ ₹10 ईच। तो ये तो 10 रुपये है, जिसे जो कार्ड फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है शेयर की, ऑफ शेयर। तो नॉर्मली ₹10 आपकी फेस वैल्यू मानी जाती है। तो 1 लाख शेयर इशू करके 10 रुपये के, तो कंपनी को 10 लाख रुपीज जो है वो रिसीव होंगे। तो पहले आपको ये किया होगा। अब जो पब्लिक है वो फिर अप्लाई करती है, पब्लिक अप्लाइज
फॉर शेयर्स। अब पब्लिक 1 लाख के लिए भी अप्लाई कर सकती है, उससे ज़्यादा के लिए भी कर सकती है, उससे कम के लिए भी कर सकती है। तो उसको हम ये भी कहते हैं जब पब्लिक ने अप्लाई किया है शेयर के लिए, जिसे कहा सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बाय पब्लिक। तो सब्सक्रिप्शन कर रही है कंपनी, जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब कर रही है। सब्सक्राइब का मतलब है कि हम इसको परचेज करना चाहते हैं शेयर को। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी हैं सब्सक्रिप्शन की। तो फर्स्ट है कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं तो इतनी ही एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही हैं, उसको हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। राइट, फुल का मतलब है जितने शेयर्स अब पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, अप्लाइड बाय पब्लिक, दैट इज इक्वल टू जितनी कंपनी ने शेयर इशू किए थे। शेयर से इशू दोनों ही बराबर है, बट रेयर केस होता है ये। अब कई बार होता है पब्लिक ने इससे कम शेयर अप्लाई किए हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स कि जो शेयर अप्लाइड हैं आपके इज लेस देन शेयर्स जो इशू किए थे कंपनी ने। और देखिए उससे ज़्यादा शेयर अप्लाई किए हैं पब्लिक ने, जिसे कहा जो ओवर सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स जो शेयर अप्लाइड हैं आपके दे आर मोर देन इशू, जो कंपनी ने इशू किए हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में एक और भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो भी कंपनीज होती हैं ये गवर्न होती हैं, इनका एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013। तो उससे पहले जो पुराना एक्ट था उससे पहले वो था 1956। अब उसको अमेंड करके हमने बना दिया है कंपनी एक्ट 2013। तो इस एक्ट में ये मेंशन किया है कि यदि आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन हो रही है और जो शेयर सप्लाई हैं लेस हैं आपके शेयर इशू से, तो उस केस में कंपनी तभी शेयर इशू देगी पब्लिक को इफ शेयर अप्लाइड जो हैं आर एट लीस्ट 90% ऑफ इशूज। इसका मतलब है जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए, जो शेयर पब्लिक ने अप्लाई करनी है, कम से कम 90% अप्लाई होने चाहिए, तभी कंपनी शेयर जो है आगे पब्लिक को दे सकती है। ठीक है, कोई ने देखा पब्लिक ने अप्लाई की लिए, अब कंपनी जो है वो शेयर देगी पब्लिक को। कंपनी गिव्स शेयर्स टू पब्लिक। तो इसको हम कहते हैं जब गिव्स का मतलब होता है कि कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए हैं पब्लिक को, जिसे जो कहा जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसका नाम है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो देखें अब जैसे 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी किस तरीके से इस मनी को रिसीव करेगी और उसकी क्या क्या एंट्रीज होंगी कंपनी के बुक्स से। हमने देखा कि कंपनी ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जो भी शेयर इशू किए हैं तो शेयर इशू होते हैं, फिर पब्लिक अप्लाई करती है, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। वो फुल भी हो सकती है, अंडर भी हो सकती है, ओवर भी। अंडर के केस में मिनिमम 90% हमारे सब्सक्राइब होने चाहिए, तभी कंपनी शेयर देगी, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएंगे। ये कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है। और जब पब्लिक अप्लाई करती है फिर कंपनी उनको अलॉट कर देती है शेयर पब्लिक को, जिसको कहते हैं कंपनी गिव्स शेयर टू पब्लिक। अब उसको आपने रिकॉर्ड करना है बुक्स में। तो उसमें अब जो बुक्स हो कंपनी में, सबसे पहले आप देखिए आपको फेस वैल्यू दी है शेयर की। लाइक वी हैव टेकन ₹10। तो कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है जब आप शेयर को अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। तो शेयर एप्लीकेशन मनी इट मीन्स अमाउंट which is paid when shares applied by public। पर अप्लाई कैसे होते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको फिलअप करना होता है और कंपनी में डिपॉजिट करना होता है बैंक के थ्रू। तो उस टाइम जो मनी पे करोगे उसका नाम है एप्लीकेशन मनी। फॉर एग्जाम्पल इट इज ₹2।
और लेके से ₹3। तो एक इंडिया में कंपनी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमारा बना हुआ है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी की भी रेगुलेशन होती हैं कुछ। तो सेबी की रेगुलेशन है कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी है, इट शुड बी मिनिमम 25%। तो ये मिनिमम आपकी होनी चाहिए 25% ऑफ इशू प्राइस। जैसे 10 का शेयर है तो मिनिमम ₹2.5 आपकी एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए। देन वी हैव शेयर। अब अप्लाई हो गई है, फिर कंपनी शेयर दे देती है पब्लिक को, जिसको कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। उस टाइम फिर आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसका नाम है शेयर अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट के टाइम जब वो आपको मनी पे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी। सपोज इट इज रुपीज, दिस इज आल्सो 3। 3 + 3 ₹6 की आपने दे दी है। उसके बाद जो बैलेंस रह गया ₹4 का, उसको फिर बाद में कंपनी कॉल करती है, उसका नाम है शेयर कॉल मनी। अब ये इसको एक ही बार ले सकते हो आप, या अलग अलग कॉल बना सकते हो। देखिए आप, फर्स्ट कॉल है, जैसे कुछ अमाउंट आप ले रहे हो, वो भी ₹2। तो ₹4 में से ₹2 आपने लिए, तो उसको कहते हैं फर्स्ट कॉल। फिर ₹2 आप बाद में लोगे जब, ₹2, तो उसका नाम है शेयर सेकंड कॉल। सेकंड भी है और ये फाइनल कॉल भी है, या इसको फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। मीन्स ये लास्ट कॉल है। या फिर ₹2 इस तरीके से कंपनी को जो फुल अमाउंट है शेयर का, वो रिसीव हो जाएगा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड या फाइनल कॉल। वैसे कॉल आपकी थर्ड कॉल भी सकती है, लेकिन आप उसको और रिड्यूस कर रखे हैं, तो इसको एक तरीके से कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, अब उसकी देखते हैं हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं कंपनी की बुक्स में। तो सबसे पहले क्या है, कंपनी ने शेयर इशू किए, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, तो उसकी एंट्री बनती है शेयर से इशू एंड एप्लीकेशन मनी इज रिसीव। और कंपनी को एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हो जाएगी। एप्लीकेशन मनी इज रिसीव। तो कंपनी के पास कैश आ रहा है बैंक अकाउंट में, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। सारा प्रोसेस बैंक के थ्रू होता है, और इसको नाम रख देंगे हम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई है। तो अभी इसमें नरेशन भी मेंशन करनी जरूरी होती है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो अब ये जो शेयर इशू किए हैं, इससे जो पैसा मिलेगा कंपनी को, वो कंपनी का कैपिटल माना जाएगा। राइट, तो देखते हैं सेकंड। तो इसमें जब शेयर इशू हो गई है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस था, शेयर हम अलॉट कर देते हैं पब्लिक को। तो शेयर्स अलॉटेड टू पब्लिक। तो इट मीन्स जब आपने अलॉट किए हैं, और उसकी जो मनी है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। एंड एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ये कंपनी का कैपिटल बन जाएगा। उसकी एंट्री होगी आपकी। अब जो एप्लीकेशन मनी है उसको ट्रांसफर कर दो आप कैपिटल में पहले। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। राइट, नॉर्मल एंट्री। अब शेयर अलॉट हो गए हैं, अब हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी पब्लिक से। एप्लीकेशन मनी जब को पहले रिसीव होती है, बाद में शेयर अलॉट होते हैं। अब उसके बाद होता है कंपनी की अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी
इज ड्यू फ्रॉम पब्लिक। उसकी एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उस मीन्स जो अलॉटमेंट का पैसा है वो हमारा कैपिटल माना जाएगा। जितने नंबर ऑफ शेयर हैं और वो आप ट्रांसफर कर दो अलॉटमेंट मनी कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद इसको क्वेश्चन ड्यू हो गई है, अब फिर रिसीव हो जाएगी कंपनी को, राइट। तो फोर्थ एंट्री है आपकी अलॉटमेंट मनी इज रिसीव। उसकी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और आप लिख सकते हैं नरेशन में बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हो गई। उसके बाद जाती है कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल है या फाइनल कॉल है, जो भी कॉल है उसकी एंट्री सेम है दोनों की। तो पहले जैसे फर्स्ट कॉल है तो हम लिखेंगे शेयर कॉल इज ड्यू, तो शेयर कॉल आपकी ड्यू हो जाती है। फिर कंपनी एक नोटिस भेजती है शेयर होल्डर की, आप कॉल मनी पे कर दीजिए, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कॉल, जो भी नाम है कॉल का वो आप लिख दो, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ये भी कैपिटल बन जाएगा कंपनी का। तो कंपनी के केस में जो कैपिटल है उसका नाम है शेयर कैपिटल। तो शेयर के थ्रू हमें मनी रिसीव होती है, तो जिसे जो कॉल मनी जो ड्यू, अब ये भी आपको रिसीव हो जाएगी। तो एक तरीके से 6 हमारी एंट्री चल रही है मेन। यानी कि जो कॉल मनी रिसीव, तो एंट्री विल बी अवर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। तो कॉल के बाद अब जितना कैपिटल हमें चाहिए था वो कंपनी को रिसीव हो जाता है। तो ये हमने देखा बेसिक एंट्रीज क्या हैं। अब कुछ और टर्म्स देखते हैं कि यूज होती हैं कैपिटल के लिए कंपनी के केस में। सबसे पहले आती है हमारी टर्म जो है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर की जो कैपिटल है उसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑथराइज, या इसको कहते हैं नॉमिनल, और एक जासू कहा जो रजिस्टर्ड कैपिटल। इसका मतलब होता है जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि कितने शेयर्स हम इशू कर सकते हैं पूरी लाइफ में। तो इसमें जिसे ये कहा जो नंबर ऑफ शेयर्स विच कैन बी इशूड बाय कंपनी, ये होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो हम इशू कर सकते हैं। क्योंकि आपने फ्यूचर में इससे ज़्यादा शेयर इशू करने हैं, तो चलो कंपनी ने रजिस्टर किए हैं 10 लाख शेयर, तो ये आपका बन जाएगा ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। उसमें ऑथराइज कैपिटल है आपका ₹100 लैक्स। तो कहते हैं ऑथराइज या नॉमिनल या रजिस्टर कैपिटल। लेकिन फ्यूचर में कंपनी इससे ज़्यादा शेयर इशू करना चाहती है तो फिर हमें अपना जो कैपिटल है ये रिवाइज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अपनी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको रिवाइज करके अब आता है। अब एट प्रेजेंट कंपनी इसमें से कितने शेयर इशू कर रही है, इसका नाम है इशूड कैपिटल। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए हैं बाय कंपनी टू पब्लिक, जो पब्लिक को हम इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ टाइम बिंग कंपनी 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख शेयर इशू करना चाहती है, 5 लाख शेयर से इशू।
ऑफ ₹10, तो आपका इशू की कैपिटल बन जाएगा 50 लाख। अब ये इशू करती है, अब पब्लिक इसको सब्सक्राइब करती है, अप्लाई करती है, तो जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यदि फुल सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्राइब कैपिटल आपका सेम हो जाएगा, 5 लाख शेयर कंपनी ने अप्लाई किए हैं पब्लिक ने, तो इट मीन्स सब्सक्राइब मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स विच आर अप्लाइड बाय पब्लिक, जो पब्लिक ने अप्लाई किए हैं, अप्लाइड बाय पब्लिक। अप्लाई को हम ये भी कहते हैं सब्सक्राइब बाय पब्लिक। इट में भी 5 लाख हो सकती है, जैसे फुल सब्सक्रिप्शन हो गई है तो ये भी आपका 50 लाख बन जाएगा रुपीज 50 लाख, ये सब्सक्राइब कैपिटल। फिर हमने देखा था जो कैपिटल है ये 10 रुपये का शेयर है, उसकी एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट है, कॉल मनी है। बाय द एंड ऑफ ईयर देखो कंपनी ने क्या फुल मनी कॉल कर ली है या कुछ रहती है, तो उसका नाम है कॉल्ड कैपिटल। तो किसी जो का जो नेक्स्ट इसमें कैपिटल आता है इसका नाम है कॉल्ड अप कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि अमाउंट कॉल्ड अप बाय कंपनी, जब भी आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं उस टाइम पे कितना अमाउंट कॉल किया है कंपनी ने। फॉर एग्जाम्पल अब 5 लाख शेयर्स हैं आपके ऑफ ₹10 ईच, और उसमें से अभी कंपनी ने ₹1 कॉल अप किए हैं, मीन्स अभी गौर पे रखे हैं, जो इसको कह सकते हैं फाइनल कॉल है जो बाद में रिसीव करेगी कंपनी या कॉल करेगी, उस केस में कॉल अप कैपिटल बन जाएगा आपका 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹8। कितना कॉल अप अमाउंट है, दैट विल बी 40 लाख रुपीज हमारा कॉल अप अमाउंट है। अब आपका पेजअप कितने हैं, अब जैसे 8 रुपये में आप ले लीजिए, कोई एप्लीकेशन मनी है आपकी, ₹3 अलॉटमेंट है 3 और ₹2 हैं आपके फर्स्ट कॉल के। अब कुछ शेयर होल्डर होते हैं, कुछ पर्सन हैं जिन्होंने अभी जैसे कॉल मनी पे नहीं की अभी, वो बाद में पे करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, उसका नाम है फिर आपका कॉल इन एरियर। एक अमाउंट आता है आपका कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर होता है मनी नोट रिसीव्ड ऑन शेयर्स। जैसे अलॉटमेंट मनी नहीं मिली या कॉल मनी नहीं मिली, नॉर्मली कॉल्स होती है ये, तो फॉर एग्जांपल आपको दिया है तो ऑन 10,000 शेयर्स ₹2 कॉल नोट रिसीव, वो आपको रिसीव नहीं हुई है, तो कॉल इन एरियर आपकी बन जाएगी 20,000। 10,000 शेयर के ऊपर ₹2 की कॉल है। अब कॉल अप अमाउंट में से आप 20,000 माइनस कर लीजिए, तो उसका नाम है पेजअप कैपिटल। किसी कॉल के पेजअप, पेजअप का मतलब होता है जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स। इसकी फार्मूला बन जाता है जितना हमने कॉल किया था कॉल्ड अप कैपिटल, और उसमें से जो नहीं मिला आपको कॉल इन एरियर वो आप माइनस कर दो, कॉल इन एरियर। तो इस एग्जांपल में जैसे 40 लाख हमने कॉल किया है, 20 हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो आपका जो पेजअप अमाउंट है 39,80,000, तो उसको फिर हम इकट्ठा शो कर देते हैं। अब देखते हैं कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है उसमें हम इसको कैसे शो करते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल को, तो इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी जैसे अब आपकी पहली साइड होती है इक्विटी लाइबिलिटीज, जो फर्स्ट हेडिंग आता है हमारा, इसका नाम है, आप इक्विटी ले सकते हैं या कैपिटल एंड लाइबिलिटीज।
हम बाद में डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट का परफॉर्मा में। इसमें देखो फर्स्ट हेडिंग होता है हमारा शेयर कैपिटल, तो उसमें आपको शो करने होते हैं सारे कैपिटल। एक हम शो करते हैं सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो इसको आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए और इसको डबल लाइनिंग से क्लोज कर दीजिए। इसका मतलब है इसका टोटल नहीं करेंगे। फिर आपने शो करना होता है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इनको इकट्ठा शो करते हैं नॉर्मली हम, मीन जो कंपनी ने इशू किया और सब्सक्राइब भी हो गया है, इसमें जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इसमें आ जाएगा। इसको भी डबल लाइनिंग शो कर दीजिए, ये भी ऐड नहीं होगा। फिर हम शो करते हैं कॉल्ड ऑफ एंड जो पेज ऑफ कैपिटल, तो जितना आपने कॉल किया है तो आप मेंशन कर दीजिए कॉल कितना है आपका, और उसमें से लेस कर दीजिए कॉल इन एरियर जो हमने ऊपर शो किए हैं अभी, कॉल्स इन एरियर, बैलेंस आ जाएगा आपका पेज ऑफ कैपिटल। तो ये फाइनल अमाउंट होता है जो बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया किस टाइप के शेयर कैपिटल हैं, तो अभी हम एग्जांपल करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक और टर्म देखते हैं अब इसमें, ये जो कंपनी शेयर से इशू करती है कैपिटल को रेज करने के लिए, तो जो शेयर्स हैं दीज आर आल्सो टू टाइप्स हैं। एक टर्म आती है आपकी टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो दो तरह के शेयर होते हैं, एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होते हैं विच इज परमानेंट कैपिटल, जो परमानेंट कैपिटल है आपका ऑफ कंपनी। परमानेंट मीन जब तक कंपनी चलेगी तो ये कैपिटल चलता रहेगा, तो ये कैपिटल कंपनी ने कभी भी वापस नहीं करना है। पर जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनका जो कैपिटल है वो परमानेंट नहीं है, तो ये पैसा जो हमने इकट्ठा किया है शेयर से ये हमने वापस करना होता है शेयर होल्डर को। तो इसकी लाइफ होती है 20 ईयर्स। इट मीन्स तो इसको कहते हैं रीडीमेबल कैपिटल, तो एक तरीके से रीडीमेबल है। रिडीमेबल का मतलब होता है टू बी रीपेड, टू बी रीपेड। ये रीडीमेबल कैपिटल है और जो कंपनीज एक्ट है उसमें इसकी मैक्सिमम लाइफ है 20 ईयर्स। रीडीमेबल एंड जो मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स। तो 20 साल तक अपने इसको रिडीम करना है। आप 10 साल के लिए भी इशू कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी, मैक्सिमम टाइम है 20 साल का। सेकंड डिफरेंस आपको मिलेगा इक्विटी शेयर। अब कंपनी जो है शेयर कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट ही देती है अपने ओनर्स को, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो किस तरीके से होता है शेयर के केस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसको कहते हैं डिविडेंड। इतनी जो कैपिटल है उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा अब ओनर को उसका नाम है डिविडेंड। पर इक्विटी के केस में जो डिविडेंड है दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट होगा कंपनी को, इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम है तो कम डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या होता है, इसमें जो डिविडेंड होता है आपका फिक्स होता है, दे गेट टू फिक्स डिविडेंड। जैसे आपका है रेट 12%, तो ये आपको मिलेगा ऑन कैपिटल के ऊपर, जो भी कैपिटल होता है उसके ऊपर आपको डिविडेंड फिक्स मिलेगा। थर्ड डिफरेंस हमने देखा इक्विटी शेयर ये परमानेंट कैपिटल है, पर ये कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, कब कल को बिजनेस फेल हो जाता है कंपनी का, उसको कहते हैं कंपनी लिक्विडेट हो रही है, फिर हम जो भी पैसा है कैपिटल का वो हम वापस कर रहे हैं ओनर्स को। तो पहले पैसा आपने किसका वापस करना है, वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ये है इक्विटी शेयर जिसको इशू करते हैं उनको हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, गैर कार्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जिसको प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट। तो इनका जो पैसा है हमने पहले वापस करना है, इसको कहते हैं गेट टू फर्स्ट प्रेफरेंस।
उनको पहले प्रेफरेंस मिलती है। सो फॉर रीपेमेंट, तो इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस क्लोज होता है तो उसके बाद जो पैसा बचता है, जैसे हम जब पहले नॉर्मली क्या होता है, जब बिजनेस क्लोज होता है ना, हम एसेट सेल कर रखे हैं, लाइबिलिटीज सेल कर रखे हैं, जो पैसा बचता है वो ओनर्स का है। ओनर दो है अब, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस को, बाद में जो बैलेंस बचेगा वो उनको मिल जाएगा। बैलेंस इज पेड टू इक्विटी, वो हम पे करते हैं अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ क्लोजर, जब क्लोजर हो रहा है बिजनेस। ये है दो तरह के शेयर, और इनके अकाउंटिंग एंट्री सेम है, बस नाम चेंज कर देंगे हम। जब आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर में लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये हमने बेसिक डिस्कस किए हैं इशू ऑफ शेयर के अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं कंपनी की बुक्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपको दिए हैं। थैंक यू।